Hello everyone. Today we will study about the common problems which are associated with oral cavity. Oral cavity is most important part of the body as well as it is important for our general appearance. Due to change in the environmental oral mucosa, so many infections may occur. The reason might be excessive secretion of saliva, dryness of the mouth, fungal infection, bacterial growth in the mouth, excessive consumption of the fried, spicy food, alcohol, smoking, and drugs, it may lead to the oral problems. Many people may suffer from the oral health problems that may unable to sit with other people. When the condition becomes worse, they start avoiding interaction with people and feel disappointed. Common problems which are associated with oral cavity are these are the some of the problems which are mentioned here. These are total 23. First is the bad breath. It is also known as halitosis. Tooth decay. It is also called as dental caries or cavities. Periodontal diseases, that is gingivitis and periodontitis. Trench mouth, dry mouth, stomatitis. Then hepatic gingiva hepatic gingiva stomatitis, tooth erosion, mumps, mouth ulcer, oral cancer, stained teeth, cavities, hyperdontia, extra teeth, thrush, malocclusion, torus mandibularis, then lingual thyroid, then tooth sensitivity, tooth discoloration, teeth whitening, cold sores. Rare diseases which are may be associated with oral cavity like congenital conditions, inflammatory lesions, traumatic condition, autoimmune disease, leukopenia and erythroplakia, Benign tumor. First we will study about contagious mumps, that is contagious disease. It may be caused by the virus that may spread from one person to other when coming in contact with their saliva, nasal secretion, and close personal contact. It may affect the salivary gland, that is the parotid glands. It is an enveloped single-stranded linear negative sense RNA virus of rubella virus genus and Paramyxovirus family. Symptoms may be fatigue, body ache, headache, loss of appetite, painful swelling. माउथ अल्सर जो होता है उसे हम कैंकर सोर्स कहते हैं. ये स्मॉल होते हैं, पेनफुल लेजेंड्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं अपने माउथ के अंदर और इन दी और एट द बेस ऑफ योर गम्स. इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, माइनर होता है, मेजर होता है, देन हर्पी फॉर्म होता है. इसमें देखते हैं माइनर में स्मॉल ओवल या फिर राउंड अल्सर होते हैं जो कि 1-2 हफ्ते में हील हो जाते हैं विदाउट एनी स्कारिंग. देन नेक्स्ट इज़ दी मेजर जो होता है वो लार्ज होता है, एक तो डीपर होता है, 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लेता है वो हील होने के लिए, रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म स्कारिंग. हर्पी फॉर्म, it is pinpoint size, cluster of 10 to 100 adulters, heal without scarring within 1-2 weeks. कॉजेज़ में भी माइनर माउथ इंजरी हो सकती है, स्पोर्ट्स के टाइम पे इंजरी हो सकती है, लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन स्पेशली B12, जिंक, फोलेट एंड आयरन, एलर्जिक रिस्पॉन्स टू माउथ बैक्टीरिया, डेंटल ब्रेसिस, then hormonal change during menstruation, stress or bacteria or any other viral fungal infections may be the reason. Hepatic gingiva stomatitis, ये एक वायरल इन्फेक्शन है ओरल म्यूकोसा का. ये किसकी वजह से होता है? हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड रियली दैट इज़ हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस 2 की वजह से. इसमें सिम्टम्स है हाई फीवर हो सकता है, हेलिटोसिस हो सकता है, then difficulty in chewing, then sore mouth lesions, एनोरेक्सिया, अनईजीनेस. ट्रीटमेंट ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए अच्छे से. दैन ड्रग्स भी ले सकते हैं इसमें, बट डॉक्टर रिकमेंडेड होने चाहिए, लाइक वेलिसाइक्लोवीर, फेमिसाइक्लोवीर. जेंटल डेब्रिडिमेंट ऑफ माउथ,
ट्रेंच माउथ में क्या होता है, सीवियर गम इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया के बिल्डअप होने की वजह से होता है। ये इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रीवेटेला इंटरमीडिया एंड फ्यूसोबैक्टीरियम स्पीशीज़। ये HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में हो सकता है। सीवियर पेरिडोंटिसिस, इसमें कॉजेज स्मोकिंग हो सकता है, स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर डेंटल हाइजीन। अगर किसी को HIV, एड्स, डायबिटीज़ है उनके केस में हो सकता है। ग्रेइश फिल्म्स ऑन द गम्स, अल्सर इन द माउथ, फटीग हो सकता है, फीवर, बैड ब्रीथ दैट इज़ द बैड टेस्ट। गम्स जो होते हैं रेड होते हैं, सूज जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, पेन हो सकती है गम्स में। ट्रीटमेंट में हम लोग इसमें एमॉक्सिसिलिन देते हैं, क्लिंडामाइसिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, देन पेन रिलीवर्स लाइक पेन किलर्स, देन प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, क्लीनिंग एंड ऑल, और डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। टूथ इरोजन के केस में क्या है, इट इज़ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर ड्यू टू दी केमिकल डिसोल्यूशन बाय एसिड नॉट ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन। इट कॉज देखते हैं इरोजन बाय द एसिड फूड्स एंड ड्रिंक्स। एसिड जो भी एसिडिक फूड्स होते हैं लाइक सिट्रिक हो गया एंड ऑल, सिट्रस काइंड ऑफ फूड लाइक ऑरेंज और एनी अदर। pH जो होता है इसका बिलो 5 से 5 to 7 5.7। कॉज जो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स एंड द बैक्टीरिया इन द जेलेटिनियस मास लाइक then anaerobic formation of the sugar in saliva. It release of the lactic acid. Stain teeth. Tooth can become discolored by stains on the surface or by change inside the tooth. 3 टाइप्स के टीथ होते हैं इसमें देखते हैं, टूथ होते हैं लाइक एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड एज रिलेटेड समथिंग। इसमें एक्सट्रिंसिक क्या होता है, अकर व्हेन आउटर लेयर ऑफ टूथ इज स्टेन, कॉफ़ी, टोबैको, वाइन, कोला, स्मोकिंग। और इंट्रिंसिक मीन्स व्हेन इनर सर्फेस ऑफ द टूथ डार्कन और गेट्स ए येलो टिंट। एज रिलेटेड में हम बोलेंगे कि ये दोनों की कॉम्बिनेशन है, एक्सट्रिंसिक ऑल्सो एंड इंट्रिंसिक ऑल्सो। डेंटिन नेचुरली येलो आफ्टर ओवर टाइम, ठीक है। इनेमल दैट कवर्स द टीथ get thinner with age, which allows the dentin to show through. Next is the hyperdontia, condition of having supernumerary teeth or teeth that appear in addition to the regular number of teeth, appear in any area of dental arc and affect dental organ. Thrush, the immune system and body's normal bacteria usually keep candida in balance. When this balance is interrupted, it can result in overgrowth of the candida fungus, causing thrush, a yeast infection of the mouth or throat. ये जनरली कॉज किया जाता है कैंडिडा एल्बिकेंस। इसमें ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स है लाइक इट्राकोनेजोल, देन फ्लूकोनेजोल, क्लोट्रिमोक्सिल, लोजेंस, ये ओरल एंटी फंगल ड्रग्स है। इसमें निस्टेटिन भी एक एंटी फंगल माउथ वॉश है, एम्फोटेरिसिन भी जो कि ट्रीट करता है सीवियर इन्फेक्शन को। देन माल ऑक्लूजन, ये मिस अलाइनमेंट होता है या फिर इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टीथ ऑफ द टू डेंटल आर्क्स व्हेन दे अप्रोच ईच अदर एज द जॉज क्लोज। ओके, इसमें कॉज क्या होता है, एक तो थंब सकिंग होती है, फिर टंग थ्रस्टिंग के वजह से हो सकता है, प्री मेच्योर लॉस ऑफ द टीथ फ्रॉम एक्सीडेंट, ऑफन इट मे बी प्रेजेंट एट बर्थ, देन जेनेटिक फैक्टर मे बी द रीज़न, ओवर एक्टिविटी ऑफ लैमिनिया डेंटल ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट। ट्रीटमेंट में हमें टीथ रिमूव करना पड़ता है। टोरस मैंडिबुलरिस, इसमें क्या होता है, बोनी ग्रोथ इन द मैंडिबल along the surface near to the tongue in the oral cavity. It's just a benign condition. Single growths are made up of bone, non-movable, smooth and hard to touch. Then tooth sensitivity. It occurs when the enamel that protects our teeth gets thinner or when gum recession occurs, exposing the underlying surface, the dentin, thus reducing the protection the enamel and gums provide to tooth and root. साइन एंड सिम्टम्स में क्या हो सकता है, हॉट, कूल, स्वीट लाइक चाय लेते हैं गर्म या फिर ठंडा, बर्फ़, आइस वगैरह, कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स एंड लेते हैं, या एसिडिक फूड्स हो गए, ड्रिंक्स हो गए, ब्रीथिंग इन कोल्ड एयर मेक्स द टीथ और टूथ सेंसिटिव और पेनफुल इन कंडीशन ऑफ सेंसिटिव टीथ। ट्रिगर्स फॉर सेंसिटिव टीथ में क्या होता है, गम रेसिस्टेंट ड्यू टू एज और इम्प्रॉपर टीथ ब्रशिंग, एसिडिक बेवरेजेस दैट कॉजेज इनेमल इरोजन एंड डेंटिन एक्सपोजर,
tooth grinding, then gum diseases which can result in gum recession, care for dental sensitivity and toothpaste. Fluoride toothpaste make up more than 95% of all toothpaste sale. इसमें क्या होता है, इसका कंटेंट कितना है, दैट इज 1000 to 1500 ppm enamel fluorosis of front permanent incisors, excessive intake of fluorine, बैड ब्रीथ हेलिडोसिस. इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर बैड ब्रीथ कंसिस्टेंट है, इसके लिए हमें प्रॉपर डेंटल हाइजीन होना चाहिए. फिर फूड जो भी पार्टिकल लेफ्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाती है. देन रीज़न क्या होता है इसमें, ड्राई माउथ हो गया, कैविटीज़ हो गया, अनियन गार्लिक, इन सब की वजह से भी हो सकते हैं. ओरल कैंसर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड्स हो सकते हैं, हेल्थ कंडीशन या फिर हैबिट या फिर किसी फूड की वजह से हो सकते हैं. कॉजेज़ में हम देखते हैं फूड हो गया, बीवरेजेस हो गया, टोबैको हो सकता है, पुअर ओरल हाइजीन, ब्रशिंग नहीं हो पा रही, इनएडिक्वेट ब्रशिंग हो रही है. देन these may be the reason. Next is dry mouth, जिसे हम जेरोस्टोमिया कहते हैं. स्मोकिंग, इंक्रीज रिस्क ऑफ गम डिजीज, सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी स्मेल आ सकती है. देन मेडिकल कंडीशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है माउथ में, साइनस इन्फेक्शन की वजह से भी, किडनी, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी इशूज़, दीज आर मे बी द रीज़न. दिस मे बी द कॉजेज़. देन लेस कॉमन कॉज में हम कह सकते हैं डाइट, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, एसिड रिफ्लक्स है, फॉरेन बॉडीज, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लॉज्ड इन नेजल पैसेज और थ्रोट. ट्रीटमेंट, फ्लॉस एट लीस्ट वंस ए डे. ओके, ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, प्रॉपर फ्लॉसिंग होनी चाहिए जिससे कि फूड पार्टिकल या जो है रिमूव हो सकते हैं. देन और प्लेक्यू जो कि रिमूव होगा. देन रिप्लेस टूथब्रश रेगुलरली. देन अवॉइड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड्स, ब्रशिंग टीथ एंड टंग आफ्टर ईटिंग. बैड ब्रीथ में ए परसिस्टेंट अनप्लीजेंट ऑडर इन एक्सेल ब्रीथ, यूजुअली नॉट सीरियस कॉमनली. डेंटल कैरीज में हम देखेंगे टूथ कैरी और कैविटीज़. Most bacteria associated with dental cavities are Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus